بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. آج جو پروگرام رکھا گیا ہے یہ ہمارے اور آپ کے پورے سال کا جو انجمن ہوتا ہے جمعرات کا دن، اس کا ایک نتیجہ ہے جو ہم نے پورے سال انجمن میں تقریر کیا. کیا ہماری صلاحیت بنی، کیسی صلاحیت بنی، کیسا رہا. تو اسی کی مناسبت سے جو ہے یہ پروگرام رکھا گیا ہے، اور اس پروگرام میں یہ دیکھا جائے گا کہ کون بچی کتنی صلاحیت سے جو پورے سال محنت کی ہے اور اس کے اندر کیا صلاحیت آئی ہے. اور جو بچی اس میں فرسٹ آئے گی، سیکنڈ آئے گی، تھرڈ آئے گی اور فورتھ، یعنی 4 نمبر کا ہم نے رکھا ہے. تو وہ 4 بچی جو ہے الوداعی پروگرام میں تقریر کرے گی، اور دیگر ٹاپک پر بھی دیا جائے گا، ہندی انگریزی میں اس پر بھی تقریر کرنی ہے، لیکن فی الحال آج اردو کا ہی چیپٹر چلے گا. ٹھیک ہے، تو وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. زیادہ ہم اپنے مہمان کا تعارف کرا دیتے ہیں. سب سے پہلے ادھر جو ہے مولانا لطف الرحمان صاحب، یہ ان کا رشتہ جو ہے سمجھنے کی، جو میرے جو گھر ہے آبائی گھر، جو گاؤں دیہات ہمارا گھر ہے جہاں سے ہم لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں، یہ جو ہے اسی گاؤں کے ہیں، اور رشتے میں بھائی لگیں گے ہم لوگ، سمجھ گئے. اور یہ فی الحال ادھر سبیہ کلا کے پاس جو ہے امامت بھی کرتے ہیں، مدرسے بھی سنبھالتے ہیں. اور ایک طرف جو ہے افتخار عالم صاحب ہیں، یہ بھی میرے گاؤں کے بغل میں ایک گاؤں ہے، وہیں کے رہنے والے ہیں. اور یہ بھی جو ہے جنگی مسجد کے پاس ایک مدرسہ ہے، وہاں کے صدر مدرس ہیں. تو مختصر تعارف یہی ہے کہ دونوں آدمی ہمارے گاؤں کے علاقے کے ہی ہیں. ایک تو ہمارے آبائی گھر ہیں جہاں ہماری پیدائشی جگہ ہے وہاں سے، اور وہ مدھوبنی ضلع میں آتا ہے. اور میرا گھر جو ہم لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں دربھنگہ شہر میں، وہ بعد میں ہم لوگ آئے ہیں، لیکن ابھی بھی وہ گھر موجود ہے. ان کو معلوم ہوگا کہ ہم لوگ کا گھر ابھی بھی ہے وہاں پر، صرف یہ کہ تالا لگا ہوا ہے اور لوگ اس کو شادی خانہ کے طور پر اس کو یوز کرتے رہتے ہیں. کوئی باراتی آیا تو اسی آنگن میں ٹھہرا دیتے ہیں، کھانا پینا اسی جگہ بنتا ہے. لیکن ابھی بھی جگہ، زمین، جائیداد سب کچھ وہاں موجود ہے، اللہ کا شکر ہے. تو مختصر تعارف یہی ہے. پروگرام کو ہم آگے چلاتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے تلاوت قرآن مجید کے لیے شہینہ خاتون کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تلاوت قرآن سے اس پروگرام کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. حمد کے لیے طاہرہ خاتون کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا حمد پیش کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جلوائی شمس قمر ہم نے دیکھا ہے تجھے، تم کرے جنہ بشر میں ہم نے دیکھا ہے تجھے. جلوائی شمس قمر ہم نے دیکھا ہے تجھے، بشر میں ہم نے دیکھا ہے تجھے. ہے کلی
جلوائے شمس و قمر میں ہم نے دیکھا ہے تجھے، پیکرِ جن و بشر میں ہم نے دیکھا ہے تجھے، جلوائے شمس و قمر میں ہم نے دیکھا ہے تجھے، جلوائے شمس و قمر میں ہم نے دیکھا ہے تجھے، پیکرِ جن و بشر میں ہم نے دیکھا ہے تجھے، ہم تمہیں گفت روز و شب شام و سحر میں ہم نے دیکھا ہے تجھے، روز و شب شام و سحر میں ہم نے دیکھا ہے تجھے، جلوائے شمس و قمر میں ہم نے دیکھا ہے تجھے، پیکرِ جن و بشر میں ہم نے دیکھا ہے تجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت کے لیے عامرہ خاتون بنت عبید الرحمن نبی آئے اور اپنا نعت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیال نگاہوں میں مدینہ ہی مدینہ ہے، میرے بیتاب اشکوں میں مدینہ ہی مدینہ ہے، خیال نگاہوں میں مدینہ ہی مدینہ ہے، تہجد کی فضائوں میں مدینہ ہی مدینہ ہے، خیال نگاہوں میں مدینہ ہی مدینہ ہے، عطا ہے مسجد نبی میں سجدے کی فضیلت ہی، عطا ہے مسجد نبی میں سجدے کی فضیلت ہی، میرے دل کی اذانوں میں مدینہ ہی مدینہ ہے، خیال نگاہوں میں مدینہ ہی مدینہ ہے، بس عشق و محبت سے لپٹ جاؤ میرے روزے سے، بس عشق و محبت سے لپٹ جاؤ میرے روزے سے، دل حسرت کی آہوں میں مدینہ ہی مدینہ ہے، خیال نگاہوں میں مدینہ ہی مدینہ ہے، میرے بیتاب اشکوں میں مدینہ ہی مدینہ ہے۔ السلام علیکم۔ تو اردو تقریر کے لیے سب سے پہلے رضیہ خاتون درجہ سوم آئے اور اپنا تقریر پیش کرے۔ ٹاپک ہے بناؤ سنگار۔ السلام علیکم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر اور میرے پیارے بہنوں، السلام علیکم۔ آج کے اس بزم میں میرا موضوع سیکھا نے بنا سنگار اور خواتین۔
जनाब आज के इस बज़्म में मेरा मौजूद से खाना बना सिंगार और ख्वातीन इस्लाम और मेरी प्यारी बहनों, आज मैं ये बताना चाहूंगी कि इस्लाम ने कितना बना सिंगार करने की इजाजत दी है, क्योंकि ये नई तहजीब का दौर है और बहुत सी औरतें गैर मुस्लिम औरतों को देखकर बना सिंगार और फैशन में उनके पीछे दौड़ने लगती है और ये जानने की कोशिश नहीं करती कि हम मुसलमान हैं और अपने दीन के पाबंद हैं और हमें वही करनी चाहिए जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश हो। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी इजाजत दी है उसी को बताने के लिए मैंने आपके सामने एक आयत की तिलावत की हूँ, जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरत के बारे में फरमाया है कि उसकी परवरिश ज़रात में होती है, वह शर्म व हया की वजह से अपनी पूरी बात नहीं बयान कर पाती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरत के बारे में दो फितरत बयान किया है, एक तो ये कि वह हुस्न व जमाल और बना सिंगार को पसंद करती है और दूसरा कि उसकी तबीयत में शर्म व हया होती है, यानी एक तो उसकी ज़ाहिरी ज़ेवरात है जो सोने चांदी वगैरह से तैयार किया जाता है और दूसरा जेवर शर्म व हया का जेवर है जो सोने चांदी वगैरह से तैयार किया जाता है और ये जाहिर किया जाता है कि बना सिंगार औरतों को करार दिया गया है। और उसके साथ ये भी जरूरी है कि शादीशुदा औरत हो तो अपने शौहर के लिए नुमाइश करे, गैरों के लिए ना, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है कि अपने बना सिंगार को गैरों के सामने नुमाइश ना करे, लेकिन जो जाहिर हो और नकाब वगैरह हो उसके ऊपर हो तो उसे गैर भी देखे तो कोई बात नहीं। ऐसा ही औरत के लिए खुशबू लगाना जायज है, लेकिन उन्हें हल्की खुशबू को ताकीद है और तेज खुशबू को नाजायज करार दिया गया है। फिर भी कोई औरत किसी के पास से इसलिए गुजरती है ताकि उन्हें भी उसकी खुशबू मिल जाए तो उस पर सख्त वईद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई औरत किसी कौम में से इसलिए गुजरती है ताकि उन्हें भी उसकी खुशबू मिल जाए तो ऐसी औरत जानिया है। लिहाजा मेरी बहनों, ये दुनिया ये हुस्न व शबाब और जवानी चंद रोज की है, फिर हमें अपने करतूत के साथ अल्लाह के सामने पेश होना है। उस वक्त हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारे बाप कौन थे, तुम्हारे शौहर कौन थे, बल्कि यही सवाल होगा कि तुमने दुनिया में अल्लाह के लिए क्या किया है और उसी पर जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा। और जैसे जन्नत का नसीब होगा वह दुनिया के सारे गम और दुख भूल जाएगा और अल्लाह ना करे अगर जहन्नम का ठिकाना लग गया तो वह दुनिया के सारे गम सारे लज्जतें और ऐश खराब हो जाएगा। आओ हम अभी से यह फैसला कर ले कि हम दुनिया के परिया बनने की बजाय जन्नत की हूरें बनेंगी और अल्लाह ताला को खुश करेंगी और उसके बताए हुए रसूल के रास्ते पर चलेंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसके बाद उर्दू तकरीर के लिए शहीना खातून आए और अपनी तकरीर पेश करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बात सजदों की नहीं, बात खुलूसे दिल के है इकबाल, बात सजदों की नहीं, बात खुलूसे दिल के है इकबाल। हर मिखानी में शराबी और हर मस्जिद में नमाजी नहीं होते। जनाबे सदरे, आज मुझे जिस उन्वान पर लफ्ज़ करने का मौका मिला है वह है नमाज की अहमियत। जनाबे अली वकार, अल्लाह ताला इंसानों का खालिक, मालिक और राज़िक है, लिहाजा सिर्फ इसी की इबादत की जाए और इसी के बड़ाई और पाकीज़गी बयान की जाए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद है, मैंने जिन्हें और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करे। नमाज के लफ्ज़ सलात के तर्जुमा है, सलात की माना दुआ के भी है। नमाज से मुराद वह इबादत है जिनका दीन में 5 मर्तबा अदा करना हर मुसलमान पर फर्ज है। नमाज दीन इस्लाम का दूसरा रुकन है, अल्लाह ताला का पसंदीदा रुकन है। नमाज का मतलब है अल्लाह ताला की इबादत करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दिन का सुकून है, जिसने उसको कायम किया गोया दिन को कायम किया और जिसने उसको ढा दिया गोया दिन को ढा दिया। नमाज पढ़ने वाला मुसलमान होता है और ना पढ़ने वाला कुफ्र के करीब होता है। जनाबे सदरे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमाया, बेशक मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क करने वाला चीज नमाज है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार नमाज कायम करने का हुक्म दिया है और ऐसे मसलूम के खास सिफत करार दिया है। इरशाद रब्बानी है, और नमाज पढ़ते रहो, मुशरिकीन में से ना हो। नमाज आखिरत में निजात का जरिया है, नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज इंसानों को बुराई से बचाता है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज के बहुत से फायदे हैं, नमाज बेहयाई और बुरी कामों से रोकती है, नमाज मोमिन से नाराज है, नमाज इंसान में आजिज़ी और इंकसारी पैदा करती है, नमाज पढ़ने से इंसान गुरूर और तकब्बुर से महफूज रहता है, नमाज इंसानों को बुलंदतरीन दर्जा तक पहुंचाती है। जो मैं सरवा सजदा हुआ तभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, जो मैं सरवा सजदा हुआ तभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल है सनम आज सुना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। आपका समाज का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद शबनम खातून दर्जा चहारू आए और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस खूबसूरत महफिल में मेरी तकरीर का उन्वान है हिजाब की अहमियत, कुरान और हदीस की रोशनी। हिजाब मुसलमान औरतों के लिए है, एक ऐसा फुरूज है जो हकाम अलैह का तख्त अदा करता है, मगर आज इसे मुसलमान बनाकर उछाला जा रहा है। हालांकि कुरान करीम में जो हर तरह से मुसलमान होता है, कानून का दर्जा रखता है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी और अपनी बेटी और मुसलमान औरतों से फरमा दे कि एक चादर को इससे अपने पर डाल रखे, ये उससे ज्यादा नजदीक होगा, वो पहचानी जाएगी तो उन्हें सताई ना जाएगी, और अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। अजीज सामीन है और सामियात है, मुस्लिम उम्मती मुसलमान का वशीरे हैं, मुसलमान खवातीन और फिरोज इम्तियाज जो इस्लामी मुआशरे को पाकीज़गी अता करने का जरिया था, उन्होंने इसी मुआशरे को पाकीज़गी अता करने का जरिया देखी, और अल्लाह ने बख्शने और मेहरबान के और जेबो अशम हया पर जर्ब लगाए और उसके शागिर्दों की रोशनी आज तक कायम है। उन्हें या तरक्की का कोई काम उस वक्त मालूम नहीं होता जब तक औरतें अपने शर्म से हया से आ जाती, और उन्हें यहाँ तरक्की का कोई काम उस वक्त मालूम नहीं होता जब तक औरतें शर्म हया पर जेवर आ जाती। सर कटा सकती हूँ अपना मगर सजदा न छोड़ूंगी, सर कटा सकती हूँ अपना मगर सजदा न छोड़ूंगी, बेटियां उम्मते मुसलमान की कभी पर्दा न छोड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत पर माँ बाप का मकाम जो है, आमिना खातून आए और अपनी तकरीर पेश करे अरबी अव्वल बिन्त उबैदुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर मोहतरम असातिज़ा इकराम, मेरी आज की तकरीर का मौजू है सगन है बाप। जनाबी अली वक़ार बाप हस्ती है जो अपने अंदर पूरी कायनात का प्यार और मोहब्बत खुलूस से हौसला बर्दाश्त किए हुए है। ये वो रिश्ता है जो जिंदगी के नशीब फराज से गुजर के बगैर किसी शकन के मजबूत से मजबूत तर होता चला जाता है। बाप ही सरमाए औलाद है, बाप ही सरमाए औलाद है, बाप ही अजदाद की बुनियाद है। गोद माँ की दरसगाह औलीन, गोद माँ की दरसगाह औलीन, बाप ही हर रोज हमारी दुनियाशी है। जनाब सदर, दुनियावी रिश्तों में सबसे अजीम रिश्ता माँ का तस्वीर किया जाता है, लेकिन बाप का रिश्ता भी अजीम शान है। माँ के कदमों तले जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ जन्म देती है और बाप सारी उम्र मेहनत और मजदूरी करके पालने का जिम्मेदारियां लेता है। बाप का शान ये है कि जनाबी अली वक़ार बाप एक ऐसी किताब है जिससे वैसे तजुर्बात और तहरीर होते हैं जो जिंदगी के जानने में रहनुमाई करते हैं। बाप का हाथ कांधे पर हो तो इंसान दुनिया का ताकतवर इंसान है। बाप का दौलत नहीं, बाप का साया ही काफी होता है। बाप की मोहब्बत शफ़क़त चट्टान से ज्यादा मजबूत और फूल से ज्यादा खुशबूदार होती है। दुनिया का खूबसूरत छत बाप है और जिंदगी का मजबूत सुकून बाप है जो जमाने भर की ठोकर खाकर अपने बच्चों की कामयाबी को यकीन बनाता है। अजीज तर मुझे रखता है वो रोगो जार से, अजीज तर मुझे रखता है वो रोगो जार से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं है मेरी माँ से। जनाब सदर, बाप वो जात है जो अपने बच्चे की जिंदगी में नशा फराज शीशा पिलाए दीवार बनकर खड़ा रहता है और बच्चे की परवरिश के लिए अपनी खुशियों को पस पर्दा डाल लेता है। उसके ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपनी जरूरियात को नजरअंदाज कर देता है। अपने पसीने की एक एक बूंद अपने औलाद पर कुर्बान कर देता है। मुझको छांव में रखा खुद जलता रहा धूप में, मुझको छांव में रखा खुद जलता रहा धूप में, मैंने देखा एक फरिश्ता बाप के रूप में।
जनाब अली वकार, बाप एक बेअस जज्बा का नाम है जो मोहब्बत के पैकर होने के साथ साथ खुलूस मोहब्बत का अति शाहकार होता है। उनके बगैर हमारी नहीं कोई पहचान है और ना ही कोई शनाख्त। ये अल्लाह की नेमत है। बाप ही वो शख्स है जो अपने बच्चे की पैदाइश से लेकर उसकी जवानी तक के लिए मुहाफिज बनकर रहता है। बाप वो शख्स है जो अपने बाप सूरज के मानद होता है जो बजाय गर्म होता है। उसकी तपेश कामयाबी की दामन होती है, उसकी रोशनी जिंदगी में उजाला करती है, उसकी शक्ति कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने में मददगार साबित होती है। तूने जो मुझे हाथ पकड़ कर न चलाया होता, मैं कभी न पेड़ बनता और न मेरा साया होता। न होता नहीं वो सब कुछ जो आज में हूँ, मुझे मेरा तूने ना इतना दिखाया होता। जनाब सदर, हर बात की ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चे की नियाज जिंदगी बुलंद करे। जो किसी भी जिंदगी की जरूरत है वो अपने बच्चे की माशी और माशरती जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करता है। जनाब सदर, माँ का हक सबसे ज्यादा है लेकिन शान बाप की सबसे बड़ी है, क्योंकि औलाद की खातिर न बारिश गिरता है, न धूप, न गर्मी, न सर्दी और सागवान माहौल में भी अपने बच्चे के लिए कमाई निकल पड़ता है। बाप की शान यह है कि वो अपने बच्चे की ख्वाहिश और उसकी जरूरियात को अपने ऊपर कर्ज समझता है, फिर कर्ज को उतारने के लिए गर्मी के रथेर से टकराता है, लोगों के बाद चुपचाप सह लेता है, अपनी हिम्मत से ज्यादा बोझ उठाता है, अपना खून पसीना एक करके शाम को घर लौट आता है, अपनी मुस्कुराहट बच्चों को नाम करता है। जनाब अली वकार, बाप ज्यादातर बड़ा दबदबी वाला लगता है लेकिन हकीकत में वो बहुत शफीक और मेहरबान होता है। हमें उस हस्ती का मशहूर होना चाहिए। जनाब सदर, बाप वो शख्स है जो लोग माँ बाप को इज्जत करते हैं वही रजा इलाही पाते हैं और दुनिया और आखिरत में उनकी कामयाबी मुकद्दर बनती है और उनकी शफकत और दुआ खामोशी समंदर के तरह होती है जिनकी लहरों में कामयाबी पहनाई होती है। या रब्बी इलाही हर किसी के ऊपर बाप का साया सलामत रखना, आमीन। ए आवाज सुन जरा सब कुछ मेरी वसूल से है, ए आवाज सुन जरा सब कुछ मेरी वसूल से है, चार जानिब ये फिजा मुझसे अता वसूल से है, उनकी दुआ मेरी शफाअत तेरा वसूल से है, उनकी दुआ मेरी शफाअत तेरा वसूल से है, साया फजल रहमत वाली काली गता वसूल से। आप सबकी समाअत का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फातिमा खातून आए और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर, आज दुनिया में जुल्म का दौरा है। हर शख्स एक दूसरे का माल व असबाब हड़प करने के चक्कर में है, सोचता है कि दूसरे का माल हथिया कर अपने माल इजाफा कर लूंगा, हालांकि वही नहीं सोचता है कि दूसरे का माल अपने माल में मिलाकर अपने आप को जन्नत की दस्तों या को मुस्तहक बना रहा है। जनाब सदर, कितनी अफसोस की बात है कि इंसान किस कदर नादान है। जिन चीजों को अपने फायदा का सौदा समझता है वो सरासर घाटे का सौदा है, मगर इसे समझ में नहीं आता है। की रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं, मैं एक इंसान हूँ, तुम लोग अपने झगड़ा मेरे पास लेकर आते हो सकता है कि तुमने कोई दूसरे के बाद मुकाबले में बना स्वर का पेश करने की माहिर हो, लिहाजा मैं इसको सच्चे समझ कर इसके हक में फासला कर दी तो उसे हरगिज न ले कि वो जहन्नम का टुकड़ा है जो मैं काट कर दे रहा हूँ। जनाब अली वकार, वो जुल्म जाती दूसरे की जायदाद पर नाजायज है, कब्जा करना हुकूक आबाद में से है, हुकूकुल्लाह से भी ज्यादा खतरनाक है। अल्लाह चाहे तो माफ कर देगा मगर बंदों का हक बंदे ही माफ करे तो करे, अल्लाह माफ नहीं करेगा। आज हम मुसीबत और चुगलखोरी में लगे रहते हैं। सच बात यह है मुजरिमों को अपना वहाँ हक नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, अगर वहाँ इंसाफ ना होगा तो कहाँ होगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जुल्म को एक वालिद भी ले होगी वो क़यामत के दिन 7 जमीनों का तख्त पहना दिया जाएगा। मोहतरम हकम साहिबान, हमें इन मारी से डरना चाहिए, वो जुल्म ज़ाती हुकूक एबाद में कोताही करने से बात करना चाहिए, वरना हमारी जिंदगी के अमाल कारत हो जाएंगे। क़यामत के दिन अमाल का हमें कोई फायदा न पहुंचेगा, हम अफसोस से हाथ मलेंगे मगर उस दिन का हाथ मलना काम ना आएगा। वो गैरते व सब्र व ईमान है कहाँ, वो गैरते व सब्र व ईमान है कहाँ, हुस्न अमान के दिल में वो अरमान है कहाँ। एक गल मचा हुआ है मुस्लिम है खात्मा हाल,
ایک گل مچا ہوا ہے مسلم ہے خاتمہ حال، پوچھے ذرا کوئی مسلمان نے کہا، آپ کی سماعت کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر وزن ہستی میں عورت نہ ہوتی، اگر وزن ہستی میں عورت نہ ہوتی، خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی، ستاروں کی دلکش فسانے نہ ہوتے، ستاروں کے دلکش فسانے نہ ہوتے، بہاروں کی نازک حقیقت نہ ہوتی۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے اس محفل میں جس موضوع پر لفظ شاعری کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے خواتین اور معاشرہ۔ صدر عالی وقار، خواتین اور معاشرے میں غیر امتیازی سلوک عزت احترام کے ساتھ برتاؤ کی مستحق ہے، ان کے حقوق کی پیمائی ناقابل قبول امر ہے۔ جناب جی وقار، خواتین کے حقوق سے مراد غیر معاشرتی، تعلیمی، سیاسی، معاشی حقوق ہے جن میں تعلیم حاصل کرنے کا حق، ووٹ ڈالنے کا حق، جائیداد کی ملکیت کا حق اور مختلف قسم کے امتیازی سلوک اور غیر امتیازی سلوک کے حق ہے۔ ہر وقت چاہے کسی بھی نسل یا مذہب یا پس منظر سے تعلق رہتی ہے، ہزاروں بار حکیموں نے اس کو سمجھایا ہے، ہزاروں بار حکیموں نے اس کو سمجھایا ہے، مگر یہ مسئلہ جن رہا وہیں کا وہیں۔ صدر عالی وقار، خواتین کو آزاد بااختیار مضبوط بنانے کے لیے تعلیم کا حصول بنیاد ضرورت ہے، کیونکہ تعلیم زندگی کو بدلنے اور غربت کو جنت کرنے میں اور خواتین کو معاشرے میں رہنما بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ ہر بیٹی بہن عورت کے سیکھنے اور آگے بڑھنے میں اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ جناب صدر، حکومت ہندوستان میں بھی خواتین کے معاشرے میں تعلیم کا حاصل بنیاد ضرورت ہے۔ آئیے ہم سب مل کر خواتین کو آواز سے بلند کریں تاکہ خواتین مضبوط اور بااختیار ملک اور قوم کی اہم کردار ادا کر سکیں۔ آپ کا سماعت کا بہت بہت شکریہ۔ آسیہ خاتون عربی دوم آئے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، میں تمہاری الجھنوں کا مکمل جواب ہوں۔ جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے قرآن کی اہمیت۔ ساتھیوں، قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ کون سی مشکل، کون سی الجھن ہے جس کا حل اس میں موجود نہیں؟ قرآن اللہ تعالیٰ کا خط ہے جو ہمارے طرف بھیجا گیا ہے۔ اگر ہمارے دوست کا خط ہمارے طرف آئے اور وہ کسی ایسی زبان میں لکھی ہو جو ہم نہ پڑھ سکے تو ہماری ہر ممکن کوشش ہوگی کہ کوئی ہمیں یہ بتا دے کہ اس خط میں ہمارے لیے ہمارے دوست نے کیا لکھا ہے، مگر افسوس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ گئی۔ اس کتاب کے بارے میں ہمیں کبھی تجسس بھی نہیں ہوا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ ساری زندگی گزر جاتی ہے، اس کو بغیر جانے اور سمجھے ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ مکملی غلاف میں ایک اونچی جگہ قرآن رکھا ہے، مکملی غلاف میں ایک اونچی جگہ قرآن رکھا ہے، اس مصلحت کے خزانے کو باندھ رکھا ہے۔ ساتھیوں، قرآن شریف ایک بہت ہی اعلیٰ مقام ہے، اس کے سامنے کوئی باطل نہیں ٹھہر سکتا۔ ظالموں کی طاقت، جابروں کی تدبیریں، دشمنوں کی سازشیں اس کے سامنے ایک بلبلے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ قرآن مجید کے سامنے 12 دشمنوں کو غالب و خاسر ہوتا دیکھا ہے۔ افریقہ کا کالا جادو قرآن آیت کے سامنے ٹوٹتے بکھرتے اور بھاگتے دیکھا۔ ہندوستان کے جوگی پنڈت اور سادھو اس کلام کے سامنے بے بس ہو گئے اور برہمن پکار اٹھے، یہ بہت ہی اعلیٰ کلام ہے، اس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تمہیں کوئی چھوڑ جائے تو رو دیتے ہو، تمہیں کوئی چھوڑ جائے تو رو دیتے ہو، اور جو تم نماز اور قرآن کے بنا جیتے ہو اس کا کیا؟ ساتھیوں، آئیے قرآن کی طرف لوٹ چلے، یہ بہت ہی پختہ اور مضبوط کتاب ہے، یہ ہمارے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اہل امت میں شفا بالقرآن کا ہمیشہ معمول رہا ہے، اس کی برکت اور اس کی عقائدیت میں کسی مسلمان کو انکار نہیں ہو سکتا۔ یہ راز تو خود قرآن کھول رہا ہے، یہ راز تو خود قرآن کھول رہا ہے، لہجے میں محمد کی خدا بول رہا ہے۔ ساتھیوں، اگر ہمیں دینی دنیا کی تعلیم حاصل کرنی ہے تو
ہوگا. نہیں تو بقول علامہ اقبال وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوارے تاریخ ہوئے قرآن ہو کر. آپ سب کی ساتھوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد تقریر ہی کے لیے خوشبو خاتون آئے اور اپنی تقریر پیش کرے. ٹاپک ہے اگر موبائل نہ ہوتا تو کیا ہوتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر آج میرے تقریر کا موضوع ہے اگر موبائل نہ ہوتا تو کیا ہوتا. موبائل فون ایک ایسا آلہ ہے جو 7 سمندر دور بیٹھے اپنے عزیز و اقارب کے دل کی آواز انہیں کے دلوں میں اتارتا ہے. صدر عالی وقار ان کے ٹوٹے دلوں کو ملایا, کتنے رشتوں کو جوڑا, لیکن صدر عالی وقار اسی آلے نے کتنے خاندانوں کے چراغوں کو گل کر دیا. اسی آلے نے کتنے رابطے کو ختم کر دیا. ایک ہی کمرے میں بیٹے ماں بہن بھائی بیٹھے ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے. اس آلے نے انسان کو ایک کمرے میں بند ہونے پر مجبور ہی کر دیا. اگر موبائل نہ ہوتا تو یہ تمام رشتے ایک ساتھ بیٹھ کر خوش گپوں میں مصروف ہوتے, مگر موبائل نے شرافت اور تمیز کو کچھ پشت ڈال دیا. یہاں تک کہ اسی گھنٹیاں خانے کعبہ اور مسجد نبی میں بھی سنائی دیتی ہے. صدر عالی وقار ہم آرزو کرتے ہیں کہ ہم خانے کعبہ کی زیارت کریں, مگر افسوس کہ ہم وہاں پہنچنے سے پہلے موبائل نکال کر سیلفیاں بناتے نظر آتے ہیں. صدر عالی وقار اگر موبائل نہ ہوتا تو ہمارے نوجوان نسل جو آج دن رات موبائل فون کا استعمال کر کے برباد ہو رہے ہیں. اگر موبائل نہ ہوتا تو آج اقبال کے شاہینوں کے ہاتھوں میں کتابیں ہوتی. جی ہاں, وہی شاہین جنہیں ستارے پر کمنڈر ڈالنی تھی, مگر وہ آج ستارے پر کمنڈر ڈالنے کے بجائے کسی ستارے پر کمنڈر ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر موبائل نہ ہوتا تو ہمارے نوجوان نسل تیزی سے اس جانب دوڑ رہے ہوتے جہاں مغربی ذرائع پہنچ چکے ہیں. ہم اندھی تقلید میں اپنے اقتدار کو بھول چکے ہیں. انہیں میں سے کسی نے محمد بن قاسم جیسا کردار بننا تھا, کسی نے خالد بن ولید جیسا شمشیر سنگھ بننا تھا, کسی نے عمر فاروق جیسا منصف بننا تھا, کسی نے عثمان غنی جیسا شرما حیا جیسا پیکر بننا تھا, کسی نے علامہ اقبال جیسا مفکر بننا تھا, مگر وہ آج موبائل میں کچے بادام جیسا گانا سنتا ہوا نظر آتا ہے. اگر سوشل میڈیا کی بات کی جائے جہاں نوجوان نسل ٹک ٹاک پر اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں, اگر موبائل نہ ہوتا تو انہیں میں سے کوئی قطب الدین ایبک اور ٹیپو سلطان بنتا. جن نوجوانوں کو اچھا نصاب تعلیم دیا جاتا تھا انہیں آج موبائل کے لیٹسٹ ماڈل دیے جا رہے ہیں. اگر اس نقطہ نظر میں ہم موبائل جیسی بلا کو ایک طرف رکھ کر اور اپنے رشتہ داروں سے بات چیت کر کے دیکھیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ وقت کتنا خوبصورتی سے گزرتا ہے. ہمت تو اٹھو آؤ سبھی بازار چلے, ہمت تو اٹھو آؤ سبھی بازار چلے, خریدنا ہے موبائل تو اپنی قسمت آزما لے. وہ آ گیا اگر آئی فون لے کر تو تم بھی گلیکسی کے نام پہ اپنا سر لٹا دو. آپ سب کی سماعت کا بہت بہت شکریہ. بعد نظم کے لیے آمنہ خاتون آئے اور اپنا ایک نظم پیش کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ مسلم خود کو کہتی ہے مگر پردہ نہیں کرتی, وہ مسلم خود کو کہتی ہے مگر پردہ نہیں کرتی, ذہن بھی صاف رکھتی ہے مگر پردہ نہیں کرتی, وہ مسلم خود کو کہتی ہے مگر پردہ نہیں کرتی, ذہن بھی صاف رکھتی ہے مگر پردہ نہیں کرتی. گلیوں میں بازاروں میں نکل کر خوب پھرتی ہے, وہ گلیوں میں بازاروں میں نکل کر خوب پھرتی ہے, حسن بھی خوب رکھتی ہے مگر پردہ نہیں کرتی. وہ مسلم خود کو کہتی ہے مگر پردہ نہیں کرتی, ذہن بھی صاف رکھتی ہے مگر پردہ نہیں کرتی. لگا کر برقع مدرسہ خوب جاتی ہے, لگا کر برقع مدرسہ خوب جاتی ہے, حجابی خود کو کہتی ہے مگر پردہ نہیں کرتی. وہ مسلم خود کو کہتی ہے مگر پردہ نہیں کرتی, ذہن بھی صاف رکھتی ہے مگر پردہ نہیں کرتی. زیب و زینتوں میں جب نکلتی اپنے گھر سے ہے, زیب و زینتوں میں جب نکلتی اپنے گھر سے ہے, نظر نیچے بھی رکھتی ہے مگر پردہ
کرتی، ان سے خدا کو کہتی ہے مگر پردہ نہیں کرتی، ذہن بھی صاف رکھتی ہے مگر پردہ نہیں کرتی۔ کیا خاتون عربی دوم آئے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محفل، معززی خواتین، اس وقت میں آپ کے سامنے جہنم اور اس کے عذاب کے بارے میں کچھ باتیں پیش کرنے جا رہی ہوں، اور آپ سب سے امید رکھتے ہیں کہ میرے باتیں دھیان سے سنیں گے۔ میری ماؤں اور بہنوں، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، یقیناً وہ ایک دیکھتی آگ ہے جو خالوں کو بن کر ادھیڑ دے گی، جو پیٹ پھیرتا اور منہ موڑتا ہے اسے پکارے گی، جس نے مال کو ڈوڑ کر حفاظت کر کے رکھ لیا، غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد نہیں کی۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، تم نہیں جانتے وہ شکر یعنی دیکھتے آگ کیا ہے، کھالوں کو چمکا دے گی، ہڈیاں چمکنے لگے گی، نہ تو رحم کرے گی اور نہ چھوڑے گی، یعنی جس گناہگار اور بدکار کو اس میں ڈال دیا جائے گا اس کے لیے وہی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر جو کیفیت بیان کی ہے اسے سن کر یہ دل کانپ جاتا ہے اور دنیا کی ساری لذت اور عیش کروا ہو جاتا ہے۔ کوئی دل اس پہ جانا تو کیا، اس کی شدت کو سننا بھی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اس کو سنانا ہی پڑ رہا ہے تاکہ ہم نیک عمل اور عبادت کریں اور سب سے اچھا برتاؤ اور سب سے اچھا سلوک کریں اور اس سے پناہ مانگے۔ میری ماں اور بہنوں، آؤ کلیجہ تھام کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنا رہی ہوں۔ ترمذی کی حدیث ہے جسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کو 1000 سال بھوکا گیا تو لال ہوئی، اور پھر 1000 سال بھوکا گیا تو سفید ہوئی، اور پھر 1000 سال بھوکا گیا تو سیاہ ہوئی، اب کالے اور اندھیرے ہوئے۔ ترمذی کی صحیح بخاری ہے، تمہاری ایک آنکھ جہنم کی آنکھ کا 17 حصہ ہے، تمہاری ایک آنکھ جہنم کی آنکھ کا 17 حصہ ہے اور اس سے 69 گنا تیزی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ روایت مسلم شریف کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جہنمیوں میں سے سب سے خوشحال شخص کو لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ایک ڈبکی دی جائے گی، اور پھر اس سے پوچھا جائے گا، کیا تم نے آرام کو دیکھا ہے؟ وہ کہے گا، میرے پروردگار، میں نے کبھی آرام کو نہیں دیکھا۔ اور جنت میں سے سب سے پکڑ کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا، کیا تم نے کبھی دکھ اور تکلیف دیکھا ہے؟ وہ کہے گا، میرے پروردگار، میں نے کبھی تکلیف نہیں دیکھی اور نہ مجھے کبھی دکھ ہوا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، گناہگاروں کا کھانا زقوم ہوگا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زقوم اتنے حد تک ہوگی کہ دنیا میں ایک بند ٹپک جائے تو دنیا میں رہنا دشوار ہو جائے گی، اور جس کو زقوم کھانا ہی ہوگا اس کی کیسی حالت ہوگی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جائے گی پیٹ اتنی بدبودار ہوگی کہ وہ نیچے نہیں اتار سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیٹ اتنی بدبودار ہوگی اگر دنیا میں اسے ایک ڈول ڈال دی جائے تو دنیا میں رہنا دشوار ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کے بعد نازیہ خاتون عربی دوم آئے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کے حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جناب صدر محترم، اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ میری آج کی تقریر کا موضوع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک۔ جناب والا، ایک کلمہ گو کے لیے اور ایک مسلمان کے لیے اور ایک مومن کے لیے نبی کریم کی ذات الہی ہر لحاظ سے مرکزی محمل میں ہے، یا زمین و زمان، یا طرفین، یا مشرقین، یا مغربین، میرے آقا کی جہاں کی ذات غرامی میں ہے۔ لاؤ کہاں سے لفظ جو تیری ثنا کروں، لاؤ کہاں سے لفظ جو تیری ثنا کروں، محسن کہوں یا وسطی کا یا حبیب خدا کہوں۔ جناب والا، حضرت محمد صلی اللہ
जी, आपकी जिंदगी हमारे लिए मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। जनाब वाला खुतमे रसूल के सीरत इखलाक एक खुली किताब की मानिंद है। आपकी तालीमात का मर्तज़ा इंसानों के दिल से, आपकी तालीमात से सहाबा कराम ईमान की रोशनी से मनव्वर है और बड़े से बड़े तूफान में उनका कुछ न बिगाड़ सका। आप अजीम सया सलार भी थे और दुनिया को संवारने वाले भी थे और आखिरत को बनाने वाले भी। खुदा की रहमत है और जलवे मोहम्मद की, खुदा की रहमत है और जलवे मोहम्मद की, जो किस्मत जो इज्जत मेरी दामन में क्या क्या है। जनाने वाला आप मोहम्मद भी अहमद भी गद की वजह कायनात भी और पैगम्बर इखलाक भी, यह पैगम्बर वाला ही थे कि आपके जानी दुश्मन आपकी जानिसार बन गए और देखते ही देखते आलम नूर और तौहीद रिसालत से जगमगाने लगा। यह पैगम्बर के अला इखलाक ही थे कि आप ही हुआ इंसान हस्ती है जिसे अल्लाह ताला ने किसी और की तारीफ नहीं की। निगाह इश्क व मस्ती वही अव्वल वही आखिर, निगाह इश्क व मस्ती वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही तहा। जनाबे वाला आप ही अजीम रहनुमा है जिसके चेहरे को वदा कहा गया, जिसके जुल्फों को वल्लैली कहा गया और जिसके चेहरे को वरखाना का जिक्र कहा गया और जिसके चेहरे को अलम नशरह कहा गया और जिसके वजूद में रहमतुल्लाह अलैहि कहा गया। जनाबे वाला कुछ वक्त की तकाजा है और कुछ लफ्जों की किल्लत है। अगर मैं नबी करीम के शान मुबारक बयान करने लगूं तो यह दिन खत्म हो जाएगी, यह रातें खत्म हो जाएगी, यह रातें गुजर जाएगी, लम्हा लम्हा गुजर जाएगा, सूरज की रोशनी चांद की चमक खत्म हो जाएगी, समुद्रों का पानी सूख जाएगा, लेकिन मेरे नबी करीम के शान मुबारक खत्म नहीं होगी। जनाब अली वकार अब इन बिखरे हुए लफ्जों को समेटते हुए अपनी तकरीर का अख्ताम करती हूँ। और बंदों को अपनी खुदा से मिलाकर सलीका हमें जिंदगी के सिखाकर, और बंदों को अपनी खुदा से मिलाकर सलीका हमें जिंदगी के सिखाकर, जो थे दरमियान उन बुतों को हटाकर, जो थे दरमियान उन बुतों को हटाकर खुदा को ही सजदा कराना नबी का, जमीन नबी का जमाना नबी का, सारे के सारे खुदाई खजाना नबी का। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रज़िया खातून अरबी सोम आए और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाम होते ही सूरज से हुकूमत छीन लेता है, शाम होते ही सूरज से हुकूमत छीन लेता है, सुबह होते ही तारों से क़ियादत छीन लेता है। अकड़ के इस ज़मीन पर ना चले इंसान, तकब्बुर करने वालों से अल्लाह इज्जत छीन लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरी प्यारी बहनों, इतना पतला लिबास पहनती हो इसलिए उस अज़ाब में गिरफ्तार कर गई। मैं पूछना चाहती हूँ, ए इस्लाम की मुकद्दस शहजादी हो, तुम्हारा जिस्म इतना नाजुक है, तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हें सिनाफे नाजुक कहा गया। मर्द तो मर्द है, अगर अल्लाह अपना अज़ाब पत्थर और पहाड़ों पे डाल दे तो पहाड़ भी अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरी बहनों, तुम अल्लाह के अज़ाब को किस कदर बर्दाश्त करने की कुव्वत रखती हो, जरा सोचो तो सही। आज तुम अपने हुस्न को नुमाइश कर रही हो, पतले कपड़े पहन करके दुनिया के सामने अपने हुस्न को जाहिर कर रही हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हारा हुस्न तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता। जवानी कितने दिन के लिए आती है? जवानी आती है जाने के लिए, जवानी आती है खत्म होने के लिए। ज्यादा से ज्यादा जवानी 10 से 15 साल तक तुम्हारे पास रहेगी। तुम अपनी जवानी की उम्र में अपने हुस्न को नुमाइश कर लो, तुम अपने हुस्न को खूब नुमाइश करोगी। फिर उसके बाद क्या है? अल्लाह अकबर। जिस हुस्न को तुम नुमाइश कर रही हो उस हुस्न को कब्र के अंदर 3 दिन के अंदर बिगड़ जाएगा। 3 दिन के अंदर उसे कब्र के कीड़े खाएंगे, कब्र के मिट्टी खाएगी। तुम अपनी बड़ी बड़ी आंखों में काजल लगाकर, तुम अपने खूबसूरत आंखों में काजल लगाकर बार बार आईनों को देखती हो और अपने ऊपर फख्र महसूस करती हो कि मेरी आंखें इतनी खूबसूरत है, मेरा चेहरा इतना खूबसूरत है। अरे नादानो, तुम्हारे चेहरे की हकीकत क्या है? अगर तुम्हारे चेहरे पे चल सुनते निकल आए तो तुम्हारा शोहर भी तुम्हारे तरफ निगाह उठाकर देखने को तैयार ना होगा। बल्कि अल्लाह अकबर, इस दुनिया के अंदर अपने हुस्न को हसीन बनाने के लिए, अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए इस कदर एहतमाम करती हो। यह तुम्हारा खूबसूरत चेहरा कब्र के अंदर बिगड़ जाएगा, कब्र के अंदर इसे कीड़े खाएंगे, कब्र की मिट्टी खाएगी,
हजरत सईद मसूद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब हजरत अली मुर्तजा के साथ में कब्रिस्तान गया, कब्रिस्तान जाने के बाद क्या देखा, अल्लाह अकबर, अली मुर्तजा ने तमाम कब्र वालों को सलाम किया और सलाम करने के बाद पूछा, ए कब्र वालों, तुम्हारा हाल क्या है, तुम्हारी कैफियत क्या है। एक कब्र से आवाज आई, ए अली, क्या पूछते हो, जिस खूबसूरत बालों को हम दिन में कई मरतबा सवाते थे, वो आज हमारी खोपड़ियों से झड़ चुकी है। जिन आंखों पर फख्र करते थे, उन आंखों के गूदे बह बह कर गालों से गिर रहे हैं। जिन गालों के सुर्खे पर हम इतराते थे, उन गालों को गोश्त को कीड़ों ने खाना शुरू कर दिया है। ए अली, तुम हमारा हाल क्या पूछते हो। जिस पर परफ्यूम लगाकर, जिस पर अत्तर लगाकर दुनिया के सामने फख्र महसूस करते थे, उस जिस्म को आज अज़्ज़ह डस रहे हैं। ए अली, हम तुम्हें अपना हाल क्या सुनाए। इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, तो अपने बड़े बालों की नुमाइश के लिए इस कदर पोशीबा नजर आती हो। ये तुम्हारा बाल कब्र के अंदर झड़ जाएगी, ये तुम्हारे आंखें कब्र के बिच्छू खाएंगे। अल्लाह के रसूल तो यहाँ तक के फरमाया कि आज औरतें अपने हुस्न को गलत इस्तेमाल करके किसी गैर महरम लड़के से मोहब्बत का पैगाम देती हुई नजर आती है। प्यारो मोहब्बत के नाम पर सभी लड़कों से दोस्ती करती नजर आती है। आज ये फैशन बन चुका है, इसे ऐब नहीं समझा जाता। वो औरतें कान खुलकर सुन ले, जिसने अपना हाथ किसी गैर मोहम्मद के हाथ में दिया होगा, अल्लाह उसकी कब्र में 99 सांप मुसल्लत फरमाएगा। और एक सांप का ये ताकत का आलम हुआ कि अगर वो सांप दुनिया में सांस ले तो उसकी गर्मी से पूरा इंसान मर जाएगा। अगर वो सांप किसी पहाड़ पर फूंक मार दे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा। ऐसे ताकतवर 99 सांप उस औरत पर मुसल्लत की जाएगी जिसने अपना हाथ किसी गैर मोहम्मद के हाथ में दिया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको गुनाहों से बचने और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, स्टेज पर उस्ताद मोहतरम हजरत तशरीफ फरमा है। एक मरतबा तमाम लोग दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चार मिसरा हाजिर करता हूँ, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह एक नाते पाक सुनाऊंगा। हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाजा फरमा दे। हवाओं पर परिंदों का बसेरा हो नहीं सकता। 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 कोई भी शहर हो मक्का मदीना हो नहीं सकता। कोई भी शहर हो मक्का मदीना हो नहीं सकता। और ये विषय बतौर खास नहीं कि बुतों को पूजने वालों जरा सूरज को समझा दो। बुतों को पूजने वालों जरा सूरज को समझा दो। बुतों को पूजने वालों जरा सूरज को समझा दो। अदा जब तक नहीं होगी सवेरा हो नहीं सकता। अदा जब तक नहीं होगी
سویرا ہو نہیں سکتا. آئیے نعت پاک کا بدلہ حاصل کرتا ہوں کہ میں تڑپ کر یہاں، کہ میں تڑپ کر یہاں مر نہ جاؤں کہیں، میں تڑپ کر یہاں، کہ میں تڑپ کر یہاں مر نہ جاؤں کہیں، میں تڑپ کر یہاں مر نہ جاؤں کہیں. میرے مولا مدینہ بلا لیجئے حجرۂ عائشہ، کہ حجرۂ عائشہ میں ہے جو جلوہ گر، حجرۂ عائشہ میں ہے جو جلوہ گر، ان کا دیدار مجھ کو کرا دیجئے حجرۂ عائشہ. اور سانپ کی شکل میں، سانپ کی شکل میں عاشق مصطفیٰ، سانپ کی شکل میں، کہ سانپ کی شکل میں عاشق مصطفیٰ، سانپ کی شکل میں عاشق مصطفیٰ، غار میں کب سے تھا منتظر آپ کا، جب نہ رستا ملا، کہ جب نہ رستا ملا، بہت بہت شکریہ، کہ جب نہ رستا ملا دس کے اس نے کہا، جب نہ رستا ملا دس کے اس نے کہا، بوبکر پاؤں اپنا ہٹا لیجئے حجرۂ عائشہ، حجرۂ عائشہ میں ہے کہ میں تڑپ کر یہاں مر نہ جاؤں کہیں، میرے مولا مدینہ بلا لیجئے میں تڑپ کر یہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. عزیز طلبہ، بہت مختصر میں آپ حضرات سے چند منٹ گفتگو کروں گا کہ آپ لوگوں نے جو پروگرام پیش کیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اور جن لوگوں نے حصہ نہیں لے پایا یا کسی وجہ سے کینسل کر دیا گیا ہو، اور اس میں فرسٹ آنا، سیکنڈ آنا، تھرڈ آنا، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. مین کمال یہ آپ اسٹیج پہ آ گئے اور چند کلمات آپ نے کہہ دیا، یہ بہت بڑی چیز ہے. ہمارے استاد اس موقع پہ ایک شعر سنایا کرتے تھے کہ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. اگر آپ یہاں آ گئے، چند کلمات کہہ دیے، یہی آپ کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. جو لوگ نہ آئے، جو لوگ ہمت ہی نہیں کیا، ان کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات بھی محنت کریں اور کوشش کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈویژن لائے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. بس وہ مجبوراً کوئی غلطی ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے نمبر جو ہے آگے پیچھے کرنا ہوتا، نہیں تو سب ماشاءاللہ پوزیشن کے لائق ہیں. خیر، بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے آپ حضرات سے چند باتیں شیئر کر دوں. آج کے دور میں سب سے بڑی کمی ہمارے معاشرے کی یہ ہے کہ عورتوں کو جو ہے مکمل دین سے دور رکھا جاتا ہے. ہم تو جہاں رہتے ہیں وہاں جتنا ہو سکتا ہے اس چیز پہ آواز کو بلند کرتے ہیں کہ عورتوں کا حقوق جو ہے ملنی چاہیے پورے. اور ہم نے آپ کہیے گا وہاں کی تعریف کرنا شروع کر دیں. ہم تعریف نہیں کر رہے، ہم وہاں کے بارے میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جہاں تک ہوتا ہے
कि हम लोग कोशिश करते हैं औरतों का हुकूक पूरा पूरा मिले। दो जगह, एक इतवार को जुमा को 2 प्रोग्राम कराते और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जाते भी थे, लेकिन औरतों की कमी हुई और कोताही हुई, ना आती थी, तो इसके वजह से कैंसिल करना पड़ा। मस्जिद में भी जहां तक कोशिश करते हैं कि औरत हो जुमा के दिन कम से कम आए, नहीं तो इसमें होता क्या है कि आधी कौम जो है दिन से दूर हो जाता है। और आज देखें यहाँ बच्चियों ने तकरीर भी की पर्दे के ऊपर, बेहयाई इस कदर आम है, अपने दीन से इतना ज्यादा बेरुखी औरत हो चुकी है आज के दौर में। अभी एक ताजा रिपोर्ट आपके सामने बताए, है तो बहुत सारा केस, अगर बताने लगे तो शायद वक्त कम पड़ जाए। अभी एक ताजा रिपोर्ट आप हजरात के सामने बताया कि आप लोगों ने भी कहीं देखा होगा क्लिप में कि एक नौजवान लड़की है, उम्र कम से कम 16-17 साल होगा उनका उम्र, वो अपने बाप से कह रही है अगर खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों किए। ना कहिएगा ये सुनाने का मतलब क्या है? ये सुनाने का मतलब ये कि आप अपने दीन से इतना दूर हो गए हैं कि आपके जबान से ये बाप के सामने निकल रहा है कि आप खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों किए। भाई खिला नहीं सकते तो पैदा कर दिया, ठीक है, गलती हो गई माँ बाप से, अब ये काम रिवर्स हो सकता है, गोली उठाओ, लगाओ, अपने आप को मार लो, ये जहर खा लो, होता नहीं होता, सुसाइड करता आदमी। ये माँ के ऊपर बाप के ऊपर तंज कर रहे हो यार, खिला नहीं सकते पैदा क्योंकि इतना ज्यादा खिला दिया तभी तो इतना बोल रही हो, नहीं आ रहा समझ में। भाई जब आदमी खाएगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे? ये 16 साल 17 साल के बिना खाए हवा खा के बढ़ गई हो, ये माँ बाप के ऊपर तंज कर रही है लड़की। भाई ये नबी की जिंदगी नहीं, पहले फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जैसे शख्सियत के घर में 40-40 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। 1-2 वाकया हो तो बताया जाए, और वो लोग पेट पे पत्थर बांध के जिंदगी बसर किया करते। कभी शिकायत मिली कि वो नबी के सामने या हजरत अली के सामने वो चीखती हो? और अल्लाह के नबी के घर में तो 11 बीवियां थी, बैक वक्त 9 बीवियां थी। कभी किसी ने तंज किया नबी के ऊपर कि आप खिला नहीं सकते तो निकाह में क्यों रखते, छोड़ दीजिए ना? कभी किसी ने नहीं कहा, सब्र किया और शुक्र किया। और कभी जौ की रोटी जो मिलती थी वो भी पेट भर के नहीं मिलती थी, लेकिन उसमें सब्र करते थे। आज भी खातून है मुआशरे में बहुत सारी खवातीन जो कि फाकों पे गुजर बसर कर लेती है, शिकवा शिकायत नहीं करती, लेकिन जो ये जो जमाना है, जमाना से इतना ज्यादा मुतासिर हमारी कौम हो चुकी है जिसको समझाना बड़ा मुश्किल काम है। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? भाई तालीम एक ऐसी चीज है जो इंसान को गलत और सही का गाइड करता है। इन्ना हाज़िल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, ये कुरान आपको गाइड करेगा, ये अंग्रेज गाइड नहीं करेगा आपको। आज होता ये है, देखिए हम सीखने की आदत नहीं है लेकिन जज्बात हो रहा हूं मैं, कि अंग्रेजों का ये आदत है, वो गाइड करेगा आकर के ना, वो मुआशरे को बताएगा भाई ये गलत तरीका ये सही तरीका है। भाई उनको क्या पता, गाइड करने वाला तो हमारा कुरान है, कुरान बताएगा माँ का हक क्या, बाप का हक क्या है। माँ और बाप का सिर्फ हक हम बताए, 5 जगह अल्लाह ताला ने अपने हक के बाद किसका जिक्र कर दिया? माँ बाप का जिक्र कर दिया। देखें 15वां पारा में बनी इसराइल में पूरा तफसील के साथ जिक्र कर दिया। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा अव किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तनहरुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। और फिर आगे फरमाया वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा व क़ुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। ये कब होगा? जब तालीम आप हासिल करेंगे तब होगा, जब जानेंगे तब होगा। ऐसे ही हो जाएगा, स्कूल और यूनिवर्सिटी में जाने से हो जाएगा। ये हम आप लोग को तंज नहीं कर रहे हैं, ये आप लोग के पास हम जवाब दे करके जा रहे हैं ताकि स्कूल और कॉलेज के लड़कियां मिले तंज करे तो उनको ये जवाब देना कि हमारे इस्लाम में ये सिखाया जाता है उफ़्फ़िन लकुम व ला तनहर, माँ बाप के सामने उफ़ मत करो। फिर आगे फरमाया वक़ुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। हम तारीफ नहीं कर रहे, हम भी जब हाथ उठाते दुआ के लिए ना तो ये अल्फाज जरूर दोहराते हैं वक़ुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। ए अल्लाह उन दोनों पर रहमतें नाज़िल फरमा जिन दोनों ने मुझे छोटेपन में पाला था। भाई कैसे माँ पालती है, माँ बाप बच्चों को पालते हैं। बाप गर्मी हो सर्दी हो कुछ नहीं देखता, बस मजदूरी करना जानता है, मजदूरी करके लाता है, बच्चों की मुस्कुराहट के लिए ना जाने कौन कौन सी तकलीफें उठाता है। माँ 1 मिनट के लिए माँ वॉशरूम चली जाए ना, बच्चा बिलखता रहता है। अगर यकीन ना है तो कभी आप वो उस मरहले में पहुंचेगा तब पता चलेगा। माँ भूल जाती है लेकिन बच्चा, माँ भूल जाती है बच्चा भी भूल जाता है, अल्लाह नहीं भूलता। अल्लाह को पता है माँ कितनी तकलीफें उठाई है। जब से बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से पहले ही से तकलीफ उठाना शुरू करती है और 2.5 साल तक चिपका रहता है। 2.5 साल तक मामूली चीज है दूध पिलाना। बच्चा जवान हो जाता है, रोटियां पका ये खिलाती है। माँ कभी पैसा नहीं मांगती रोटी पकाने की। माँ ना खाने पे नाराज होती है, खाने पे नाराज नहीं होती। ये है माँ के अंदर शफ़क़त और मोहब्बत। आज देखें माँ और बाप को कैसे डांटा जा रहा, मारा जा रहा घरों के अंदर।
आपको एक दो के जिस जगह हम रहते हैं वहां पे ना जाने कितने घर से ये शिकवा शिकायत आता, मौलवी साहब कुछ कीजिए, कुछ पानी दम कर दीजिए, तेल दम कर दीजिए, ताबीज। हम क्या करें यार, हम बस यही कर सकते हैं, अपनी औलाद को भेज दीजिए, हम उनको समझा देंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। और समझा समझा के थक गए, लेकिन समझने को नहीं। भाई जब बचपना में उनका वक्त था तालीम देने का, दीन इस्लाम सिखाने का, जब आपके कंट्रोल में था तब तो आपने कुछ किया नहीं। और जब जवान हो गया, कंट्रोल से बाहर हो गया, क्या होगा? इसलिए कहा जाता है बच्चों का जो हुकूक है माँ बाप के ऊपर, उनमें से एक हुकूक ये भी है उनकी तरबियत अच्छी होनी चाहिए। तरबियत नहीं होगा, आज देखे ना, बेटियां, जवान बेटियां घरों के अंदर माँ बाप को सता रही है, और माँ के ऊपर ऐसे चीख रही है, चिल्ला रही है, ऐसा लगता है कि ये माँ वो नहीं, माँ ये है, इन्होंने माँ को पैदा किया है। और बाप के सामने बेटा के सामने बाप डर रहा होता बात करने से, कहीं मेरा बेटा भड़क ना जाए, कोई ऐसी बात हम ना कह दे मेरा बेटा नाराज हो जाए। भाई लग रहा है वो बाप नहीं, वो बेटा है, बेटा ने इसको पैदा किया है, उल्टा सिस्टम लग रहा है। उलमा के सामने आते हैं ना, कहते हैं ऐसे ऐसा निजाम चल रहा है घरों के अंदर, तो कहता है कुछ नहीं, है कयामत की निशानी है। घरों के अंदर बेटियां चीखेगी माँ के ऊपर और माँ को जलील करने लगेगी, ये सब के सब क्या है? बेटा तो कर ही रहा है, वो भी कयामत की निशानी है। लेकिन बेटियां भी, भाई औरत का अगर दर्द ना समझे तो कौन समझेगा? सबकी बीमारी यही है कि बचपन में तालीम नहीं दी जाती है, सही गाइड नहीं किया जाता है। कुरान की अगर तालीम दी जाए, हदीस की तालीम दी जाए, यकीन जाने माँ और बाप को पलकों पे बिठाने के लिए बच्चा तैयार होगा। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताएं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, कितने बड़े इमाम गुजरे हैं। वो जब घर में आते थे, अपने माँ के जो पैर का तलवा होता ना, वो चाटा करते थे। उनकी वालिदा कहने लगी एक दिन, बेटा तुमको तो पूरी दुनिया ईमान कहती है, तुम ये क्या हरकत कर रहा है, ये पैर चाट रहा तू? तो इमाम अबू हनीफा ने कहा, माँ ये आपका पैर नहीं चाट रहा, मैं तो अपने जन्नत को संवार रहा हूं। जब दीन इस्लाम बच्चों के अंदर उतर जाता है ना, तो फिर ये हक अदा करता है औलाद माँ और बाप का। कभी आप ये ना समझे कि ये तालीम बड़ा फजूल किस्म की। आज गुनाह करने वाले दुनिया में बहुत मिलेंगे, आ रहा नहीं आ रहा समझ में? गुनाह करने वाले दुनिया में बहुत मिलेंगे, नंगी घूमने वाले भी बहुत मिलेगी, पर्दा करने वाली नहीं मिलेगी। पर्दा भी की करेगी तो इज्जत की हिफाजत करने वाली नहीं मिलेगी। अगर आपको वाकई में ये बात कहने की जगह नहीं है, लेकिन कह रहा हूं, अगर वाकई में कोई पसंद है, निकाह का पैगाम भेजे माँ बाप से कह करके। ये गैर ताल्लुक की आज फैशन बन चुका है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का, और इसको नाजायज और हराम बिल्कुल नहीं समझा जा रहा। आज यही वजह है कि औरतों को दो टके का वैल्यू नहीं दिया जा रहा मुआशरे के अंदर। जब हवस का निशाना बना लेता आराम से, तो फिर उसको जरूरत किया शादी करके घर में पालने की? एक बात याद रखें, अगर आप किसी के आज गर्लफ्रेंड बन रहे हैं, जब तक आप खूबसूरत है तभी तक आप किसी के गर्लफ्रेंड हैं। जहां आपकी हुस्न जवानी बिखरेगी, जहां ढलकेगी, बस हो गया, खत्म वहां से। अभी एक क्लिप के बारे में बताना, पाकिस्तान की एक खातून क्या कहती है, एक नौजवान लड़की ने कहा कि हम जो है अपने आप को मुआशरे के हवाले करना चाहते हैं, हम अच्छा डॉक्टर साइंसदान बनेंगे, ये कौन की खिदमत करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे। तो उनका जवाब जो आया, उलमा इकराम ने जो जवाब दिया, जो मार्केट में आया, कि भाई जवानी जो है वो बहुत जल्दी ढलकने वाली, मर्द से ज्यादा जल्दी, मर्द से भी ज्यादा औरतों की जवानी जल्दी ढलकती है। और कहा कि ये बात उस वक्त काबिल कबूल होती जब कहत साली हो जाता डॉक्टरों का, साइंसदानों का कहत साली हो जाता मुआशरे में। तब अगर आप ये बात कहते हम अपने आप को कौम के लिए, कौम के खिदमत के लिए अपने आप को ये वक्त कर रहे हैं, तो ठीक है, उस वक्त मानी जाती। लेकिन ये किया भाई, डॉक्टर क्या दुनिया में मर गए क्या सब डॉक्टर? कहने का मतलब ये है भाई, आज जो है आप मॉडर्न लड़की को देख करके मुतासिर ना हो, आप अपने पास जवाब को इतना मजबूत रखें। आप डायरेक्ट कोई भी मुस्लिम लड़की हो गैर मुस्लिम हो, कोई भी अगर ये कहे कि दुनियावी तालीम जरूरी है, तो उनसे कहें जितनी दुनियावी तालीम जरूरी है उतनी दीनी तालीम भी जरूरी है। और ये कुरान आपको गाइड करेगा, कमाना कैसे, खाना कैसे, जिंदगी कैसे बसर करना। खैर ये जो बात की है अभी, अगर आप किसी की गर्लफ्रेंड रहिएगा जब तक आप खूबसूरत हैं, लेकिन आप किसी की बीवी बन के रहते हैं, तो सिर्फ बीवी नहीं, किसी की मां बन जाती है, किसी की भाभी बन जाती है, किसी की बहू बन जाती है। आ रहा नहीं आ रहा समझ? वो फिर इतना आसानी से नहीं छोड़ेगा। गर्लफ्रेंड का कोई वक्त नहीं होता, कब ब्रेकअप हो जाए कोई गारंटी नहीं रहता। इसलिए
अगर वक्त है तो घर बसाना, ये हराम और नाजायज ताल्लुकात से अपने आप को हमेशा महफूज रखना। अगर कोई जाती हो गए तो माजरत चाहते हैं, दुआ करें। बहुत अच्छी बात बतला रहे थे, टॉपिक भी अच्छा था। तो आज के प्रोग्राम में जो तकरीर जो मुकाबला हुआ है, इसमें हम चलते हैं नीचे से। चौथे नंबर पर आई है आसिया खातून अरबी दोम, चौथे नंबर पर। ये नंबर लाई है कुल मिला के दोनों हकम हजरात का 160। कितने? 160 नंबर लाई है आसिया। और तीसरे नंबर पर है आमिना खातून अरबी अव्वल, दर्जे अरबी अव्वल। ये लाई है 163 नंबर। कितने? 163। तीसरे नंबर पर है ये आमिना खातून। दूसरे नंबर पर है खुशबू खातून अरबी दोम, जो नंबर लाई है 166। ये दूसरे नंबर पर है। और अव्वल नंबर पर है रजिया खातून अरबी सोम, ये लाई है 172 नंबर। माशाल्लाह बहुत खुशी हुई। रजिया की तकरीर भी माशाल्लाह अच्छा भी था और अंदाज भी थोड़ा सा अच्छा था, लेकिन इसी अंदाज को थोड़ा सा अपने अंदाज में अगर वो बयान करती तो थोड़ा और अच्छा रहता। उन्होंने नकल की है किसी आलिम दीन की, तो इससे थोड़ा सा भद्दा सा लग रहा था, लेकिन टॉपिक अच्छा था। लेकिन वो नकल जो की है ना, तो नकल करने की वजह से थोड़ा सा नंबर कट गया है, नकल में असल बदल गया है। हाँ, असल जो है बदल गया। तो मैंने इससे पहले भी कहा था, देखो दुनिया के अंदर अपनी एक पहचान बनाओ। लोग बहुत कुछ कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए तो ऐसा होगा, ऐसा कीजिए तो ऐसा होगा। इसके चक्कर में न रहो, बल्कि अपनी एक पहचान बनाओ। किताब सबका मुताला करो, तकरीर सबकी सुनो, लेकिन अपना एक जो है एक इमेज बनाओ कि भाई हमारा ये अपना स्टाइल होनी चाहिए। क्या है? और हर एक उलमा किराम के भी हमने देखा है कि सबका अपना अपना एक अलग स्टाइल होता है। बातें वही होती है, कुरान और हदीस की ही बातें होती है, लेकिन सबका एक अलग अलग अंदाज होता है और सब अपने अपने अंदाज की वजह से पहचाना जाता है और मशहूर होता है यूट्यूब पर दुनिया में। तो इसलिए अपनी पहचान बनाओ, अपनी एक आवाज बनाओ और अपनी एक जो है तर्ज लो, दूसरे की नकल ना करो। दूसरे की नकल करने से ये होता है कि कभी कभी इंसान जो है जब तकरीर करने लगता है तो कुछ लोग होते हैं जो पहले से तकरीर सुने होते हैं यूट्यूब पर, तो वो अंदर अंदर गाली इतना देता है कि जी देखो दूसरे की नकल करके यहाँ सुना रहे। समझ गए? तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, बहरहाल बहुत अच्छा रहा और बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने जो है मेहनत की। और तमाम बच्चियों का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो बच्ची इसमें हिस्सा ली है। दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो है अपना वक्त निकाल के इसमें हिस्सा लिया है और इस प्रोग्राम को जो है कामयाब बनाया। ठीक है। और दूसरा, हमारे हकम साहिबान जो हजरात हैं आए हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने कीमती वक्त निकाल के हमें वक्त दिया है मदरसे के लिए। तो आप तो लोगों का भी दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम असातिज़ा किराम, हाफिज साहब का भी और मास्टर साहब का भी, उन्होंने वक्त दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ मौला करीम, हम सब तेरे गुनहगार बंदे हैं, खताकार है मौला। तू खालिक है, मालिक है, रज़्ज़ाक़ है, तू सारे जहानों का मालिक है मौला। ऐ मौला करीम, हम सब तेरे गुनहगार बंदे हैं, तू अगर माफ़ नहीं करेगा तो कौन करेगा। ऐ मौला करीम, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ मौला करीम, हम सब गुनाहों के समुंदर में बेतहाशा डूबे हुए हैं। ऐ मौला करीम, तो अपनी रहमत की रस्सी से हम सब को गुनाहों के समुंदर से निकाल ले मौला। या रहमुर राहिमीन, हम सब पर तमाम उम्मत मुस्लिम